سب ہونٹ کھل جائے اس کے لیے، اس کی ثنا کے لیے، اس کی ستائش کے لیے، اس کی حمد کے لیے، جس بات کے لیے ہم یہاں پہ موجود ہیں، اس کی پرستش کرنے کی، اس کی عبادت کرنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں۔ سارے ہونٹ کھلے اس کی تعریف کے لیے، اس کی تعظیم کے لیے، کیونکہ وہ اتم اور اعلیٰ خدا ہے، افضل خدا ہے۔ باپ جلالی میں تیرا شکر کرتی ہوں، یہ دعا میں اپنے خدا یسوع جی کے نام سے مانگتی ہوں، پاک کو اپنا تیرے تابع کرتی ہوں۔ تیرا شکر، تیری تعریف، تیرا شکر، تیری تعریف ہو باپ۔ میں نہایت ہی تیری شکر گزار ہوں خدا کہ تو نے ہمیں موقع دیا، ہم نہ چیز لوگوں کو خدا ہوتا۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو پیار سے میرے خدا، تو ترس والا خدا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، ہم سب تیرا شکر ادا کرتے ہیں باپ۔ تیری حمد کرنے کو ہے، تیری ستائش کرنے کو ہے، تیرا تخت لگانے کو ہے خدا، تو ہمارے ساز و بازوں میں مسا کرنا اب ہم جب تک بولے پاکرو تو ہماری مدد کرنا، پاکرو تو ہمیں ہدایت دینا، تیری ہدایت سے چلے پاکرو، تمہاری جسم و جان میں آقا تیرا شکر، تیری تعریف، ہلیلویا ہلیلویا ہلیلویا، ہوسنا ہوسنا ہوسنا، تیرا شکر، تیری تعریف، تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید قدوس ہے، تو جلالی ہے، تو پاک ہے، پاک ہستی، تیرے جیسا کوئی خدا نہیں، تیرے جیسا کوئی باپ نہیں خدا، تیرا شکر، تو اتم اور اعلیٰ خدا ہے، تو پاکیزگی سے بھرا خدا باپ۔ تیرا وعدہ ہے کہ جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہوں گے وہاں میں موجود رہوں، تیرا تخت لگنے کو باپ۔ تو اپنے بیٹے کو خدا، اپنے بیٹے داؤد کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو مسا کرنا باپ، اس کے ساتھ ہو، اس کے گھرانے کے ساتھ ہو، تیرا شکر۔ جتنی جانیں آ چکی ہیں خدا ان سب کو آج بڑی بند کر دینا، تیرے نام سے جو ہے بندھن ٹوٹ جائے آج خدا، اس مول فضا کو تیرے ہاتھوں میں دے دیتی ہوں، ہم سب تیرے تابع ہیں خدا، کوائٹ کے ساتھ ہونا خدا، آپ ان کی مدد کرنا آپ۔ اسی طرح میں جو ملکی حالات ہیں خدا خدا تیرے آگے منت کرتے ہیں ہم سب خدا خدا باپ، کیونکہ تو ہی جب اگر زخم دے تو مرہم پٹی بھی تو ہی کرتا ہے باپ۔ جتنے بھی خدا خدا گھر اور گھرانے خدا خدا پریشانی میں ہے خدا، گرے ہوئے ان کو آزاد کر یسوع کے نام سے باپ۔ جلالی اسمانی پر جن کو پیارے خدا جن کے نقصانات ہوئے خدا خدا ان پر نظر کر، رحم کر، ترس کھا خدا، کیونکہ تو ترس سے بھرا خدا ہے جلالی باپ۔ تیرا شکر کیونکہ تو سب کچھ کرتا ہے خدا، جو تیرے پاک در خوف میں رہتے ہیں تو انہیں کچھ کمی نہیں ہوتی باپ۔ ہم سب کی حفاظت کر، تیرا شکر، تیری تعریف، ہلیلویا ہلیلویا۔ یہ دعا میں اپنے رب یسوع جی کے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔ ہم گائیں گے آپ پہ کھلو ہاتھ بدا کے، مینو رب بچاوے گا، اوہ ڈونگے پانی بچوں مینو کھچ لے جاوے گا، ہلیلویا۔ آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے، مینو رب بچاوے گا، آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے، مینو رب بچاوے گا، اوہ ڈونگے پانی بچوں، اوہ ڈونگے پانی بچوں مینو آپ پہ اوپروں ہاتھ بدا کے،
मेरा सीता हमारो ना जद सामे भी बसाना मेरा सीता हमारो हालेलुया हालेलुया। बाकी अजीजों, अब जो हालात चल रहे हैं आपको भी पता है, पर वो उसके जोर से, उसकी ताकत से, उसकी कुव्वत से वो छुड़ाने की कुदरत रखता है। हमारा खुदा बुलंदो बाला है, मगर वो फिर भी खाकसार का ख्याल रखता है, क्योंकि वो हमारे साथ होता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। और जब भी मुश्किल परेशानी जैसे भी हालात हो, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम और उसकी प्रस्तुति करेंगे, इसके बाद बेटी तलावत करेगी। हालेलुया। यहोवा मैं पुकारता, हाँ मेरे वल तू छेती आ। हालेलुया। आइए उसको पुकारेंगे दिल और रूह और सच्चाई के साथ, और वो हमारे लिए सुनने के लिए वो अपने कान झुका लेगा आसमान से। हालेलुया हालेलुया। यहोवा मैं पुकारता,
हालेलुया के लोग होते हैं, वो कहीं दूसरे रास्तों पर नहीं जाते, वो सिर्फ खुदा के रास्ते पर चलते हैं, बल्कि वो चुन लेते हैं और वो कहीं भी नहीं जाना पसंद करेंगे, बुरी रविशों में नहीं वो पड़ेंगे, कहीं भी नहीं वो ऐसे रास्ते अपनाएंगे जहाँ पे खुदावंद की प्रेजेंस ना हो, उसकी हुजूरी ना हो। सो खुदा हमारी दिलों को गुर्दों को जांचने वाला खुदा है, वो हमारा बाप है, वो अज़ली अब्दी बाप है, वो हमारे आंसुओं को देख लेता है और पहुंचता भी है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मैं बहन सोसन से कहूंगी कि वो दुआ में रहनुमाई मुल्क के लिए भी दुआ करेंगी। सलाब जो ये चल रहे हैं, ये काम हो रहे हैं, तो वो दुआ करें। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरे नाम की जयकार हो। प्यारी यीशु मैं तेरा शुक्रिया अदा करती इस मौके के लिए, इस घड़ी के लिए, जिंदाबाद के लिए, तेरा शुक्र करती इस घर के लिए, तेरी कसरत की बरकत सलामती चाहती हूँ। खुदावन तेरे घर को तेरे हैंड ओवर करती हूँ, तेरी छतों दीवारों चौकों को तेरे बड़े का फूल लगा देती हूँ। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करती इस मान तेरा तब से जमीन तेरे पाँव की चौकी है। खुदावन तूने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते दरवाजा खुला जाएगा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, प्यार के लिए तेरी कसरत की बरकत सलामती चाहती हूँ। खुदावन तेरी आत्मा को तेरे कभी हाथों में दे देती हूँ, तेरे परों थले छुपाती हूँ। खुदावन अभी से तेरे हैंड ओवर कर देती हूँ। खुदावन तेरी आत्मा के मुंह में जो कलाम है खुदावन दा, तू उनके होंठों को उसकी जुबान का सुनवा लेना, ताकि वो ना बोले तेरा पाक रूह से होके बोले तेरा। खुदावन तेरा शुक्र करती साजो वाजों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करती हूँ। खुदावन जो सलाम में दुनिया खुदावंदा लाखों में पहुंच गई है, खुदावंदा उनकी निगाहबानी और हिफाजत कर। प्यारे यीशु तेरे अगे फरियाद करती हूँ खुदावंदा, तुम्हारा भरोसा तुम्हारा तवक्कल है खुदावंदा, हम तुझ पर तवक्कल करते किसी इंसान पर नहीं। हमारा जिंदा खुदा जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। प्यारे यीशु मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। खुदावन फिर से मैं सराहने के लिए तेरी कसरत की बरकत सलामती चाहती हूँ। खुदावन तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। खुदावन तू शुक्र के लायक है, तू जलाल का बड़ा खुदावन है, तू मौत से कट के जिंदगी देता है, कसरत की देता है। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ। खुदावन हम खुदावन कम में तेरा फजल हमारे लिए काफी है। तेरा शुक्र करती तेरी तारीफ और यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको सलाम, जय मसीह की। मैं ज़बूर 23 की तिलावत करूँगी। खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साए के वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी
और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। अजीज़ों, मैं बताना चाहूँगी कि जब हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप का मतलब है इज़्ज़त देना, और हम ऐसी हस्ती को इज़्ज़त देते हैं जो बेहद बेहद सिताइश के लायक, और वो कौन है? हमारा खुदा। कौन है वो इस लायक? हमारा खुदा, जिसकी हम वर्शिप करते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, उसको पहली प्रायोरिटी देते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं। वर्शिप का ये मतलब है ताकि वो हमारी रोटी पानी पे बरकत दे, हमारे बीच की बीमारी को दूर करे, और जब हम उसका तख्त लगाते हैं, गा कर उसको बढ़ाते हैं, तो वो आसमानों पर फरिश्तेगान भी खुश होते हैं। सिर्फ खुदा को इज़्ज़त हमें देनी चाहिए। हम उसकी इबादत करते हैं और उसको सिजदा करते हैं। ये इबादत का के बीच में ये सारे काम है। क्या करना है? उसको सिजदा करना है, उसकी इबादत करनी है, गा कर करनी है, पढ़ कर करनी है, कलाम सुनकर। ये वर्शिप है हमारी। खाली प्रस्तिश गाना ही नहीं होता, इसमें सारी पूरी इबादत है। इसका मतलब है कि हम उसकी वर्शिप करें, उसको सिजदा करें। सो अजीज़ों, आपको इबादत का हिस्सा ये है कि हमें जब हम खुदा पाक है तो वो चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां भी पाक बने, और जब हम आते अपने दिल को साफ करके सारी चीज़ें निकाल के सिर्फ उसके लिए हम उसको पहला दर्जा दें, जिसके लिए हम आते हैं। वो पाक हस्ती है, वो महान हस्ती है। सो उसका शुक्र करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके पाक रूह को जैसे हमने वेलकम किया है तो हम गाएंगे, उसको इज्जत और जलाल देंगे। रुआ खुदावंद को इज्जत और जलाल देंगे, उसी की सिताइश करेंगे, क्योंकि वो रुआ 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 Oh
हालेलुया। रूह की कुवत, हालेलुया, पाक रूह की कुवत से यीशु आएगा और शैतान का तहस नहस कर देगा। वो ये वक्त जल्दी होने वाला है, होने को है। आप लोग निशानियां भी इसकी देख रहे हैं। काफी लोग, काफी खादमीन भी ये कह रहे हैं कि वक्त जल्द आने वाला है। हम बेदार हो जाए, उसके लिए तैयार हो जाए, अपने लिबास को, अपने अंदर की अपनी तैयारी पूरी रखे, रूहानी लिबास पहन के रखे, उसका कलाम पहन के रखे, अपने अंदर भर के रखे। ये कलाम भी हमें नहीं एक दिन मिलेगा अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसी तरह अपनी आंखों को बंद करके हम गाएंगे, मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा रुआ। हालेलुया, हालेलुया हूँ तेरे मिलकर गाए, मिलकर सब गाए लेकिन मिलकर गाए। हालेलुया। तू हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा। हालेलुया। सबरा मुझको शिफा से तू अपनी रजा से, मुझको शिफा से तू अपनी रजा से, भर मुझको मसा से यसू की वफा से, भर मुझको मसा से यसू की वफा। सारे सारे बंधन मेरे खुदा, सारे ये बंधन मेरे खुदा,
ये मेरी दुआ, और अपने फजल से ये मेरी दुआ, और मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, और मुझ पे फजल तू, ये मेरी दुआ, और अपनी मोहब्बत से मुझको सदा दुआ रुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मुझे अपनी राहों पे चलना सिखा, मसीहा की मानिद मुझे तू बना, मसीहा की मानिद मुझे तू बना, मेरे इन लबों पे यही है दुआ, मेरे इन लबों पे यही है दुआ, दुआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, इसी तरह हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे। पाकरू को हमने वेलकम कर लिया है, वो हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। इसी तरह उसके मसहा में ही मैं बहन एस्टर से कहूँगी कि वो शुक्रगुजारी की दुआ करें। बहन एस्टर दुआ करें क्वायर में से। छुटते हैं तुझे सजदा करते हैं, इस बात के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं तो खुदा उनको अपने प्यारों को यहाँ पर लाया, अपने पंडाल में करे। खुदा जितनी भी जाने तेरे हुजूर आ चुकी हैं, खुदा एक एक को चुना बरकत देना करे। खुदा और जो आने का इरादा रखते हैं खुदा उनको खुदा को जब लेकर ताकि खुदा हम मिलकर खुदा तेरी इबादत को कर सकें। खुदा दुआ करती हैं खुदा तेरी इबादत करके खुदा इन सबके गलों को मसा चाहे ताकि खुदा तेरी इबादत कर सके। खुदा इसी तरह दुआ करती हैं भाई बहू के लिए जो तबला करें खुदा उनके भी यहाँ पे मसा कर जो खुदा तेरे बंदों के साथ मिलकर खुदा तेरी इबादत कर रहे हैं। खुदा हर चीज़ के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा इस घर के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा इस घराने को खुदा वो और ज़्यादा खुदा कहने में ले जाए। खुदा इसको और ज़्यादा बढ़ा ताकि खुदा किसी तरह खुदा तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सके। तेरे खुदा जिस जाने में तेरे जोड़ चुकी हैं खुदा एक एक की दुआ को सुन और एक एक दिल की बात को पूरा कर खुदा क्योंकि खुदा तो ही आवाज़ है और सब कुछ खुदा करने की कुदरत रखता है। खुदा मेरी इस छोटी सी बात को सुन और कबूल कर इसी के नाम से आमीन। ईमान है वो किस पे होना चाहिए? अपने खुदा पर। खुदा ही ईमान है और हमारा भरोसा हमारा तवक्कुल अपने खुदा पर ही होना चाहिए। आज जबकि हम जो जमा है बेशक हम परेशानियों में भी गिरे हैं, मुश्किल हालात में भी गिरे हैं, लेकिन हमारा ईमान नहीं डोलना चाहिए। हालेलुया। हमें उस पर कायम रहना चाहिए क्योंकि वो हमारा यहोवा यरी खुदा है जो मुहैया करे। हम क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे। तेरा ईमान न डोले ए दिन पावे, तेरा ईमान ना डोले ए दिन पावे बुरे चलते,
काबू विच रख दिल वाले जज्बातां नूं जाणदा है यसू तेरे सारे हालातां नूं काबू विच रख दिल वाले जज्बातां नूं जाणदा है यसू तेरे सारे हालातां नूं सारे हालातां तेरे हाथ च खुदा बोले आवे झूले चलते तेरा ईमान ना डोले यसू तेरिया आवे झूले चलते तेरा ईमान ना मीना निराश कभी ना मुरझाने दूं ताकि हवा वाले हसानू भावे दूं ओ मीना निराश कभी ना मुरझाने दूं ताकि हवा वाले हसानू भावे दूं हसानू भावे रवे तू खरा जदों तोरे झूले चलते हालेलुया हालेलुया। वाकई अजीजों, अगर जब हम खरे उतरेंगे, जब हम उसकी बातों को मानेंगे, तो फिर वो हमारे हक में क्या करेगा, बोलेगा। वो फिर बोलता है, हमारी तरफदारी करता है, हमें सुनता है, क्योंकि जब हम उसके साथ चलते हैं, उसकी बातों पे अमल करते हैं। अमल करना ही सबसे बड़ी बात है। सुन तो लेते हैं हम, लेकिन अमल करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो हम अमल भी कर सकते हैं उसके कलाम पे, उसकी बातों पे, क्योंकि उसकी बातें सारी सच्ची हैं, उसके वादे सारे सच्चे में, सारे हाँ में हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा हमें मजबूती अता करता है पाक रूह के वसीला से। हालेलुया हालेलुया। बहनों में से मैं बहन जो खुदा की खादमा भी हैं वो आएँ और दुआ में रहनुमाई करें। वो दुआ करेंगी शुक्रगुजारी की, और अपने मुल्क के लिए भी दुआ करेंगी। सब अपने सरों को झुकाए, खुदा की हजूरी को महसूस करे, अपनी आंखों को बंद करे और खुदा को पुकारना शुरू करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, हम दिल और दिल की था गहराई से बाप आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा, आज के सुंदर मौका के लिए मेरे खुदा, आज की सुहानी शाम के लिए के बाद आपने अपने सुंदर कदमों में झुकने का मौका अता फरमाया मेरे खुदा। हम उनमें से अच्छे नहीं बाप जो आज का दिन ना देख सके, आपने हमें जिंदा और जिंदों की धरती पर रखा। इस बात के लिए मेरे खुदा बाप आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। हीला रावा सीखा वाला जिला रिया, हीला रावा जिला रिया, मुंडोलो रोज़ो बोरी ला रावा जिला रिया। देख मेरे नबी, मेरे खुदावंदों के खुदा, हम खुदावंदों के खुदा आपके सुंदर मस्बा को सजाए बैठे हैं मेरे खुदा। आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके आचाने के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे खुदा। ऐ खुदावंदों के खुदा, मेरे रबी, मेरे मौकम की मेरी उम्मीद, मेरी चट्टान, ऐ खुदावंदों के खुदा, इस पंडाल पर हम तेरी पाक बरकत को चाहते हैं मेरे खुदा। इस मिनिस्ट्री पर, इस चर्च पर हम तेरी खुदावर गहरे बसा को मांग लेते हैं मेरे खुदा। जिस तरह तू अपनी खादमीन को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है मेरे खुदा, मेरी दिल से दुआ है मेरे खुदा, हम सारे मिलकर मुत्तफिक होकर इस मिनिस्ट्री को, इस चर्च को खुदावर आपकी पाक ब्लेसिंग में दिन दुगनी रात चौगनी बरकत की दुआ देते हैं मेरे खुदा। देख मेरे रब्बी, इस कवायद पर हम तेरे मस्सा को मांगते हैं मेरे खुदा। आप ऐसे प्रस्तगार ढूंढते हैं जो रूह और
खुश करे मेरे खुदा। इन बेटियों पर खुदावन आपका पाक रूह कसरत से काम करे मेरे खुदा। जब ये गाए बजाए मेरे खुदा तो बंधन जुए टूटे बीमार शिफा पाए, अंधे देखे लंगड़े चले और बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाए मेरे रब्बी। और खुदावन इन पर ये नजर आए कि वाकई ये तेरे बेटे और बेटियां मेरे खुदा यीशु की जिंदगी में आपका जलाल नजर आए मेरे खुदा। जिस मैदान में जाकर ये खड़ी हो खुदावन पता चले मेरे यीशु की सूरमा खड़ी है मेरे खुदा। इनको खुदावन रूहानी और जिस्मानी दोनों बरकत से मालामाल रखिएगा मेरे खुदा। इनके घरानों को इनकी खुदावन इनके हिम्मत इनके घरानों को और बाइश से बरकत कर दीजिएगा मेरे खुदा। मैं फिर से खुदावन तेरी खादमा को, तेरी सूरमा को, तेरी प्यारी को, तेरी शहजादी को तेरे हाथों में देती हूँ मेरे खुदा। जब तक खुदावन ये मज़बा पर तेरे खुदावन कलाम की तमजीद कर रही है मेरे खुदा, इसे लफ्जों की तरतीब दीजिएगा, लफ्जों की जुमला बंदी दीजिएगा मेरे खुदा। जो कुछ वो बोले अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपका पाक रूह होकर इनमें से काम करे मेरे खुदा। यीशु जी अपनी बेटी को बड़ी बरकत देना, उम्र की दराज़ी और पीरी सलामती की दुआ करती है मेरे खुदा। जब कलाम को बयान करे तो खुदा हमारी कमी हमारी कमजोरियां आज तेरे यीशु नाम के वसीला से, तेरे बोलने के वसीला से जो बातें आपको हम में से नहीं पसंद वो रेजा रेजा हो जाए और वसम हो जाए मेरे खुदा। आप आगे हमें भी पाक कीजिएगा मेरे खुदा। और खुदावर आप कामिल है, हमें भी कामिल बना दे आज के कलाम के वसीला से मेरे खुदा। और यीशु जी ना कि हम सुनने वाले बने बल्कि अमल करने वाले बन जाए मेरे खुदा। यीशु जी जो बेटा तबला बजा रहा है इसके हाथों को ब्लेस कीजिएगा, इस बच्चे को रूह और आग का शोला बनाकर और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कीजिएगा मेरे खुदा। ना कि मुल्क पाकिस्तान को बल्कि इनको बाहर की कंट्रियों में लेकर जाओ मेरे खुदा, ताकि ये इसी तरह भटकी रूहों को तेरे गला में जमा करे मेरे खुदा। यहाँ पर तेरी हजूरी है, तेरी मामूरी है, एक एक की जिंदगी पर ठहर जाए मेरे खुदा। जो अभी तक नहीं आए आने का इरादा रखते हैं मेरे खुदा, उनको भी सलामती से अपने प्यार की डोर से बांध कर लेकर आ मेरे खुदा। और यीशु के नाम से बात जितने आ जाए इनके दिल की मुरादें पूरी हो। अगर कोई बीमार है शिफा पा जाए, इनके खुदावन रूह के काम आपके नाम से बहाल हो। और मैं ईमान से कहती हूँ नेक्स्ट फ्राइडे को खुदा ये सब तेरे गवाह बनकर तेरे मज़बा पर आकर तेरे नाम की गवाही देंगे। इसी तरह मेरे खुदा कैमरामैन बेटों पर तेरी बरकत को चाहते हैं मेरे खुदा, इन्हें भी कसरत की बरकत देना, इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मैं फिर से दिल से इस मिनिस्ट्री पर, इस चर्च पर, क्वाइल पर, इन लोगों पर तेरी खास चुनी बरकतों को मांगती हूँ। मसीह के असीम और बाबरकत नाम से मांगती हूँ और पा लेती हूँ। जब हमारी जिंदगी खत्म होने पर होती है तो कौन हमें संभालता है? हमारा यीशु। जब हम अपनी जिंदगियों से तंग या परेशानियों मुश्किलात के हालात में से गुजर रहे होते हैं तो वो ही हमें संभालता है, नहीं तो हमें कोई और नहीं संभाल सकता इस दुनिया में, ना कहीं और। हालेलुया। सो हम गाएंगे यीशु मसीह तेरा प्यार है ता मैं जिंदा हाँ। हालेलुया। यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा हाँ। मिलकर गाएंगे यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा हाँ। तेरी दया बेशुमार है, तेरी दया बेशुमार है मैं जो जिंदा। मिलकर गाएं सब। हालेलुया। जेना पर्दा मेरी हामी तू, जेना पर्दा मेरी हामी तू, किज छड़दी मैं गुलामी नू, किज छड़दी मैं गुलामी नू। तू सच्चा खुदा वफादार है, तू सच्चा खुदा वफादार है मैं जो जिंदा तू सच्चा खुदा वफादार है मैं जो जिंदा यीशु यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा मेरे पापा दे लई तू
जिंदा तू डरदा जो सुनदा पुकार है मैं जो जिंदा यीशु यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा तेरे प्यार की मैं बयान करा तेरा प्यार की मैं बयान करा तेरी पाक मोहब्बत दे नाल परा तेरी पाक मोहब्बत दे नाल परा तेरे प्यार तो जावी निसार है तेरे प्यार तो जावी निसार है मैं जिंदा तेरे प्यार तो जावी निसार है मैं जिंदा यीशु मसीह तेरा प्यार है मैं जो जिंदा मैं जो जिंदा मैं जो जिंदा हालेलुया वाकई उसका प्यार अजब और निराला है वो हमारे लिए झुक जाता है हमारे लिए हम्बल हो जाता है हलीम हो जाता है फरोख्तन हो जाता है हालांकि वो बादशाहों का बादशाह है लेकिन उसने हमें नमूना दिया सब प्यार का कि वो हमारे अंदर रच बस जाता है खुदावन का शुक्र करते हैं जो उसको जानते हैं जो यीशु को जानते हैं उन्हें कुछ कमी नहीं कि यीशु का प्यार यीशु की मोहब्बत हम सब जानते हैं कि वो कितना वफादार खुदा है वो प्यारा बाप है हमारा खुदावंद है हमें संभालता है हमें हमारी देखभाल करता है अजीज़ों हमारे बच्चों की वो हमारा साहिबान है वो हमारा निगहबान है उसका शुक्र करते हैं उसका जितना भी शुक्र करे कम है अजीज़ों या आज उसका प्यार है जो हम सब मिलकर बैठे हैं उसको जानते हुए उसको पहचानते हुए कि उसने कितने बड़े बड़े काम किए हालेलुया हालेलुया उसकी प्रस्तिश में और आगे बढ़ेंगे ना आस रखा दुनिया ते ना आसरा लेना है हमें किसी की आस नहीं रखनी अपने खुदावंद की रखनी है आमीन आमीन आस रखा दुनिया ते ना आसरा लेना सब खड़े हो जाएंगे संगत में हालेलुया आस रखा दुनिया ते सब खड़े हो जाएंगे हालेलुया ना आसरा लेना
हालेलुया, हालेलुया, यीशु की सब तशरीफ रखिए। खुदाम का शुक्र करते हैं, आप सबने भी बहुत अच्छे से गाया। खुदाम सबको बरकत दे इस गीत के वसीला से। और मैं शुक्र करती हूँ कि हम सब इसकी प्रस्तुति जब करते हैं, उसका तख्त लगाते हैं, तो रिश्तेदार तो खुश होते ही हैं, और हमारा बाप कितना खुश होता होगा कि मेरे बेटे बेटियां के साथ जाना है, इस्तकबाल करना है। भाइयों ने नहीं करना क्या? हाँ जी, आज तो 2 भाई हैं, तो आपने दुआ की थी ना, आपने कलाम के लिए तब की थी, आपको नहीं आती? सीखे, ठीक है। कि आज अगर हम सीखेंगे तो फिर हमारे बच्चे भी वही काम करेंगे जो हम करेंगे। खुदावन का शुक्र करते हैं। मैं क्वार के बेटों में से कहूँगी, कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ करे। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र। यस, हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आए करे। यस, सच्चाई से तेरे नाम को जो अगर उस्मानी सब कुछ हुआ देख करने देना, तो कुछ मांगा देख नाम से मांगा, जो कुछ मांगा। आमीन, आमीन। आइए खुदाम को इज्जत और जलाल देते हुए भाई सोनू मुनीर जी का गीत है, इन्होंने गाया है ओरिजिनल। ए आवाज तो जलाल सारा मिलेगा, मेरे यीशु नू। किसको जलाल देंगे हम? अपने यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने बदनों से, अपने आवाज से अपने खुदावन को इज्जत और जलाल देंगे, अपने यीशु को, और गाएंगे ए आवाज तो जलाल सारा मिलेगा, मेरे यीशु नू। ए आवाज तो जलाल सारा मिलेगा, ए आवाज तो जलाल सारा मिलेगा, मेरे यीशु नू, मेरे यीशु नू, मेरे यीशु नू। फिर से गाएंगे, ए आवाज तो जलाल सारा मिलेगा, ए आवाज तो जलाल सारा मिलेगा, मेरे
हालेलुया। क्या आप अपनी आवाज से हालेलुया गॉड ब्लेस यू। ये तालियां यीशु के लिए है और थोड़ी सी मेरे लिए भी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं। क्या आप अपनी आवाज से किसी और को जलाल देना चाहेंगे? कभी भी नहीं। हालेलुया। जो उसके बिलीवर होते हैं, जो उसको पहन लेते हैं, वो फिर किसी की तरफ रुख नहीं करते। वो अपनी इबादत, अपना हर चीज़ फिर उसके नाम से करते हैं और उससे हासिल करते हैं उसकी मोहब्बत को। क्या आपके अंदर किसकी मोहब्बत है?
हाँ, हमारे यीशु की उसकी मोहब्बत है। ये नहीं कि हम मज़बा पर कुछ हो और बाहर कुछ हो, अंदर कुछ हो, ये मोहब्बत नहीं है, फिर ये दिखावा है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। कलाम भी यही फरमाता है, मैं सुनने वाले ना बनो, उससे अमल करने वाले भी बने। सो आप सब खुश हैं? कितने खुश हैं? तालियों से होना चाहिए। तो भाई भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। और आज कुछ नए चेहरे भी हैं, और जो नए चेहरे हैं उनके लिए हम सबको आज तालियां बजाएंगे। हमें बहुत खुशी होती है कि जब आप सब हम मिलकर उसका तख्त लगाते, उसकी प्रस्तिश करते, उसको बजाते, तो फिर खुशी होती है। आपको अंदर से आपकी रूह ताज़ा हो जाती है, आपकी रूह खुश हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर किसका रूह है? खुदा का रूह है। और पाक रूह हमारे अंदर जब काम करता है, चलता फिरता, असर रखता है, तो फिर ही हम उसके वजह से हम बोल पाते हैं, वरना यहाँ पे कोई कायम नहीं, खड़ा नहीं हो सकता। पाक रूह ऐसी चीज़ है, हम उसके ताबे हैं, और अपने आप को उसके ताबे जब कर देते हैं तो फिर उसकी रहनुमाई से ही चलते हैं, उसकी हदायत से चलते हैं। कलाम फरमाता है वो हमारे लिए फिर हमारा रहबर बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो कई मैं देखती हूँ कि पाक रूह को मिसयूज भी करते हैं, लेकिन जब तक वो हमारे अंदर नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ ही नहीं है, हमारा वजूद ही कुछ नहीं है, हम उसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते। हालेलुया, हालेलुया। तालियां।
खुदावंद का करते हैं, हमारे बच्चों में भी ये सब है। आप जब आपके बच्चे भी कुछ ना कुछ सुनाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताया कीजिए, ताकि वो भी हिस्सा लें, वो भी गा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। बहनों में से भी कोई गीत गाना चाहता है तो वो आ सकता है यहाँ पे और वो गीत गा सकते हैं। आप सबकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो। हम सब मिलके इंसान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਾ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। हालेलुया। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ हम सब गाएंगे। पापी बंदे तू फिर पछताना, ऐ बेटा तेरे ये रियलिटी है, ये कलाम है वाकई। फिर जो वक्त गुजर जाता, आज का दिन जब गुजर जाएगा ये दोबारा नहीं आएगा। तो ये सच है, हमें हमारे साथ हमारे अमाल जाने हैं, हमारा जिस्म भी यही रह जाना है और हमारा सिर्फ हमारी रूह और हमारे अमाल जो है वो हमारे साथ जाने हैं। सो वाकई हम अपनी तैयारी रखें, तैयारी बल्कि करें। जो नहीं दुआ करते वो दुआ करना शुरू कर दें, जो कलाम पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ रहे वो पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि कलाम ही वो कुव्वत और ढाल है, हमारी सिपर है, वही हमारा जुआ नरम और मुलायम रखता है। वो तो कहता है कि अपना जुआ मुझे दे दो, क्योंकि उसका जुआ हल्का है, हमारा भारी है। हमारा क्यों भारी है? हमने मुसीबतें ऊपर ली हुई हैं, तकलीफ़ें ली हुई हैं, बीमारियां ली हुई हैं,
कि तरह तरह की बदियां हमारे अंदर चल रही हैं, इसलिए हमारा जो नरम मुलायम नहीं रहता, भारी हो जाता है। वो तो कहता है कि मुझे दे दो, मुझे अपनी फिक्रें दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो तो हमारा बाप है, वो हमारी फिक्र रखता है, हर रोज रखता है, हर रोज वो हमारा बोझ उठाता है। कलाम फरमाता है कि अपना बोझ मुझे दे दो। वो तो हमें आराम देना चाहता है, हम ही आराम नहीं लेना चाहते। हम इधर उधर भटकते हैं, इधर उधर जाते हैं, औरों से हम दरख्वास्तें रखते हैं, हम उसके आगे दरख्वास्त रखें। दरख्वास्त तेरियां वही सुनेगा, वही कबूल करेगा। हालेलुया, इज्जत भी वही बढ़ाएगा। खुदावंद की अजीम और बाबरकत हमें आप सबको की सलामती हो। आपको भी सलामती आप हो। सबको सलाम। और सबसे पहले वाइफ को और खुदा की अजीम खातमा को मेरी तरफ से सलाम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया। टीवी अजीज हो, मेरी गवाही कुछ इस तरह से है, तो मेरा ईमान है कि आप इसके वसीला से बहुत सी बरकत को रिसीव करेंगे। मेरी गवाही इस तरह से है कि आज से दो जो फ्राइडे गुजर चुके हैं, उससे पहले की बात है कि मैं भी एक दफ़ा ही इस फ्राइडे की मीटिंग में आई और मेरी बेटी की हालत बहुत खराब थी। शायद आप सब देख रहे थे कि ये इधर नडाल पड़ी हुई थी और मैं जो थी आंसुओं के साथ यहाँ पर खुदा से मांग रही थी। और खुदा का शुक्र है कि ये इसको हैजा हो गया था और बहुत ऐसा हैजा हुआ था कि कोई भी मेडिसिन इसको कवर नहीं थी कर रही। जैसे मैं यहाँ से दुआ करवा कर यहाँ से गई, खुदा की खातमा की दुआ की और यहाँ पर खुदा का रूह मुझे जो था वो कसरत से नजर आ रहा था कि वो जुम्बश कर रहा था। मेरी बेटी पर यहाँ पर ठहरा और खुदा का शुक्र है कि मेरे अजीजों, मेरी बेटी उसी दम शिफा पा गई और आज आप सबके साथ बेटी को जो है मिस मत किया करे, आप सब जरूर आया करे। और यहाँ पर वाकई खुदा का टक लगा होता है और खुदा के रूह की आग यहाँ पर मौजूद होती है, वो आपको छुएगा और बरकत देगा। जिस तरह आज मैं गवाही के लिए यहाँ पर खुदा के मंचा पर खड़ी हूँ, मेरा ईमान है कि नेक्स्ट फ्राइडे आप सब गवाही के साथ बहुत सी गवाहियों के साथ आएंगे। खुदा में आप सबों को बहुत बरकत देगा और थैंक यू, गॉड ब्लेस यू टू। जरूरी नहीं है कि हमें टेस्टमनी कोई बीमारी की ही देनी है या कोई, आप रूहानी भी दे सकते हैं। जब आपको कोई पाक रूह छूता है या आपको कोई टच कलाम की बात लगती है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो ये बीमारियां तो उसने कहा है कि वो शिफायाब भी देता है, उसका लहू देता है। सो इसी वाले से हम कहेंगे तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मुझे नहीं पता था बहन ने की टेस्टमनी देनी है क्योंकि मैं खुदा के मसबा पे खड़ी हूँ और मैंने ये गीत पहले से निकाला और बहन ने देखिए शिफा का और गीत भी ऑलरेडी पहले से निकला हुआ था कि शिफा यीशु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। हम गाएंगे तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई
तेरी जिंदगी बताई है। तूने कुर्बान तूने कुर्बान हो कर तेरी जिंदगी बताई है। तेरे साथ खाने से तेरे साथ खाने से जज्ब मैंने बताई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने साथ मुझसे छोड़ दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने साथ मुझसे छोड़ दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमान दिया दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमान दिया दिखाई। तेरे हाथ तेरे हाथ थामे तेरे हालेलुया। तो खुदावन फिर वादा पूरा कर लिया उसने यस्सु को भेजकर, हालेलुया, हमारे लिए हमारी खातिर वो जमीन पर आया, उसने सलीब पर जान दी, लहू बहाया, और आज आप सब सेहतयाब शिफायाब हर चीज़ें खुदा ने आपको दे रखी हैं उसके वसीला से, उसके नाम से, हालेलुया हालेलुया। आइए मैं बेटे क्वायर का बेटा खड़े होकर अपने हाथों को बुलंद कीजिए। हम सब क्वायर भी हाथों को बुलंद कर लें, क्योंकि ये उसकी महिमा है, उसकी इज्जत है, बेहद सिताइश के वो लायक है, कलाम होता है, हालेलुया। और वो मेहरबान भी है। आजमा कर देख लीजिए, उसको पुकार के देख लीजिए, वो आपके लिए आपकी दुआओं का जवाब देगा, हालेलुया। सब हाथ उठे, सब हाथ उठा लीजिए उसकी सलाह के लिए, इस इंसान के लिए अपने हाथ उठाने, अपने खुदा को दिखाइए अपने हाथ, वो आज ही आपको हर चीज से रिहाई देगा। आमीन। हाथ उठे सब होठ खुले तेरी सना के, सब हाथ उठे सब होठ खुले तेरी सना के लिए। तेरा देखते लगे रूह का जोर बढ़े, तेरा देखते लगे रूह का जोर बढ़े, तेरी महफिल यूं सजती रहे। सब हाथ उठे सब होठ खुले तेरी सना के लिए। अपनी सोचो फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार दे। अपनी सोचो फिकर रखे हम एक तरफ, उसकी गुर्बत में कुछ पल गुजार दे। गर हो कामिल कुछ नामुमकिन नहीं, गर हो कामिल कुछ नामुमकिन नहीं, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले, पूरे दिल से उसे जो पुकार ले। सब हाथ उठे सब होठ खुले तेरी सना के लिए। सब हाथ उठे सब होठ खुले तेरी सना के लिए। उसने वादा किया होगा वो दर में, उसकी गुर्बत में कुछ पल
दे, उसने वादा किया होगा वो दरमिया, उसके नाम पे जब होंगे लोग जमा, उसे बातें करे, उसको सजदा करे, उसे बातें करे, उसको सजदा करे, हाँ वो मौजूद है संग हमारे, हाँ वो मौजूद है संग हमारे। सब हाथ उठे, सब होंठ खुले, तेरी सना के लिए। खुदावंद में मसरूर हो सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा भी। खुदावंद में मसरूर हो सभी, पूरी दिल की मुरादें करेगा भी। मांग लो जो भी कुछ मांगना है तुम्हें, मांग लो जो भी कुछ मांगना है, कोई दिल में काश दबी रह ना जाए, कोई दिल में काश दबी, दिल में काश दबी, दिल में काश दबी। हालेलुया। बेटे के लिए तारीफ हो। ये नहीं देखना सोता अल्लाह को नहीं, क्योंकि ये कोई हम दूसरा खुदावंद का ये काम है, वो हमें पसंद करता है, हर हाल में वो पसंद करता है, वो टूटे फूटे अल्फाजों को पसंद करता है, वो सादा लोगों को पसंद करता है, उनकी हिफाजत करता है, कलाम में लिखा है। हालेलुया। सब तशरीफ खुदावंद का शुक्र करते हैं। और मुझे बहन का नाम नहीं आ रहा, आप जो ये आई हैं जो सफ़ेद दुपट्टे वाली हैं, आप चेहरा आपका बहुत परेशान है, खुदावंद का खुश हमें उसने कहा कि खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ कहा पालूस है, लेकिन खुदावंद का कलाम है, हमें भी खुश रहना है हर हाल में, मुसीबत में भी उसका क्या करें, शुक्र करें, क्योंकि मुसीबत में जितना हम शुक्र करेंगे उतना खुदावंद हमें बरकत पे बरकत देता जाएगा, हमें सरफराजी कामरानियाँ देता जाएगा। अब आप लोग खुशकिस्मत हैं, हम सब खुशकिस्मत हैं कि हम उसकी प्रेजेंस में हैं, उसकी हजूरी में है, उसकी मामूरी में। लोग परेशानियों में घिरे हुए हैं, तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं। अब आपने देखा, मैं यूट्यूब पे मैं बड़ी दुखी हुई, आप लोग भी शायद देखते होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि लोगों के इतने खूबसूरत प्यारे प्यारे घर बर्बाद हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। लेकिन देखें, अब ये तो खुदा की मर्ज़ी है, ये खुदा की तरफ से कोई इंसान नहीं। अगर आप वैसे आप इमेजिन करें, आप चेक करें कि हम किसी के दरवाजे पे पानी थोड़ा सा फेंकेंगे ना तो लड़ने को आ जाएंगे, ऐसा होता है। हमारे साथ ऐसा हुआ, हम जहाँ रहते थे रेंट पे, तो वहाँ पे हम ना पानी बाहर हमारा चला जाता, वो हमारे साथ लड़ने के लिए आ जाते थे कि आपका पानी बाहर आ गया, हमारे दरवाजे के आगे आपने पानी कर दिया, लेकिन हमारी गलती नहीं होती थी, वो पानी खुद ही चला जाता था उधर। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंसान में बर्दाश्त नहीं है, इंसान में बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो खुदा के साथ नहीं है। जिसमें खुदा की बर्दाश्त है वो ही सह सकता है, उसकी मोहब्बत सह लेती है। मैंने कलाम दिया था इस पे कि मोहब्बत सह लेती है, पर जो खुदा की मोहब्बत है जो आपके अंदर है, और मेरा ईमान है, मेरा यकीन भी आप सब बहनें भाई जितने हैं जो बर्दाश्त करने वाले बैठे हुए हैं। हालेलुया। अपने लिए तालियां बजा दीजिए। अच्छा, मैं पूछना चाह रही थी, मुझे पता चला कि किसी बहन की डेथ हुई है, आप लोगों को पता है? वो आई थी यहाँ? अच्छा, शुक्र आप जिंदा है, मैं आपका समझ रही थी क्योंकि उन्होंने कहा वो आई है, तो मुझे मेरे ज़हन में पता नहीं क्यों इनका फेस आ रहा था। मैंने कहा खुदा ना करे, पता नहीं। अब मैं वीडियो भी देख रही थी तो मुझे ये हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं कौन सी बहन है, मुझे पता नहीं है। बेटों ने मुझे बताया कि वो आई थी यहाँ पर एक दो दफ़ा। सारे ब्लेस्ड लोग आते हैं, शुक्र खुदा का करते हैं।
کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ہم سب کو، بلکہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں بہن اور میں، ہم سب مل کر پوری فیملی، تو ہم شکر کرتے ہیں خدا کا کہ دیکھیں خدا کا یہ پیار ہے جو ہم نے ہے، جس کے اندر خدا اور اس کے اندر پیار ہے. ہاں جی، ہماری ترقی کے لیے ہوتی ہے. کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے ہے. یہ تب ہم بول سکتے ہیں خدا سے جب بات کرنی ہے پرسنلی. آپ نے جب اپنی دعا، شخصی دعا جب آپ کرتے ہیں اکیلے، تو خدا سے باتیں کرتے ہیں. کلام فرماتا ہے کہ اس کی ہمیں بھی نہیں، ہمارے بھید، حالانکہ بھید کی بات ہم کر رہے تھے خدا سے، وہ ہم بھی نہیں جانتے، خدا باپ جانتے ہیں. ہم خوش قسمت ہے، یہ نعمت اس نے ہمیں دی تاکہ ہم سے بات کر سکیں، ڈائریکٹلی بات کر سکیں. تو یہ اس کا فضل اور اس کا رحم ہے. اور خداوند سے ہم اس نے کہا کہ بڑی آرزوئیں رکھو، بڑی آرزوئیں رکھو، بڑی سے بڑی آرزوئیں رکھو. تو یہ نہیں کہ ہم چھوٹی بات میں کہ یہ کہے کہ خدا یہ کر دے، ہم بڑی بھی اس سے مانگیں، کیونکہ وہ تو دیتا ہے، وہ تو بانٹتا ہے. تو وہ جب بانٹتا ہے تو پھر وہ واپس دے دیتا ہے کہ تو یہ میرے بیٹا بیٹی لے لے. سو یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیسے لینا ہے، کیسے اس سے برکت لینی ہے، کیسے اس سے کہنا ہے اپنے باپ سے. سو وہ ہمارا باپ بھی ہے، ہمارا خدا بھی ہے، اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. یہ کس نے سنا؟ تھک گئی میں ہار گئی، اپنے لوگ تو ہار گئی ہوں، ہن کدی بھی نہ کسے ول جاواں گی. ہاللیلویا، ہاللیلویا. سو میرا ایمان، ہم سب کا کوائر کا بھی ایمان ہے. ہم کلام کے لیے گائیں گے، سب آنکھیں بند ہو جائیں. ہاللیلویا. اس کے کلام کو مانگے، کیونکہ کلام ہی وہ واحد ہے جو ہمیں نئی زندگی دیتا ہے. وہ کلام جس میں ہر چیز کا حل ہے، مشکلوں کا حل. آئیے. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا، اثر دکھا کے رہا، جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا، جس بھی روپ میں آیا. تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی،
जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा न था वजूद किसी शय का जब ज़माने में ना था वजूद किसी शय का जब ज़माने में खुदाया तू तेरे साथ तेरा कलमा था खुदाया तू तेरे साथ तेरा कलमा असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा में से कलाम के लिए दुआ जिसने करनी वो यहाँ पे आ जाए, सब आंखें बंद हो जाएं। Thank you so much. Bless you. सब ये ध्यान किया करें क्योंकि खुदा तरतीब का खुदा है, हमें भी तरतीब से चलना है, फिर ही असर करेगा कलाम भी, उसकी प्रस्तश, उसकी दुआ, उससे जो मांगते हैं फिर उसका असर होगा। जब मैं बोल देती हूँ कोई भी खादम या कोई भी मसबा पे खड़ा होता है तो उसकी बात को गौर से सुना करे। मैं पहले भी कहती हूँ क्योंकि वो नहीं उसका रूह बोल रहा होता है तो सब उसको फॉलो किया करें। जब वो कहता है आपको खादम या खादमा कोई भी शख्स या तो फिर आप उसकी बात पे गौर किया करें और वैसा ही किया करें क्योंकि वो नहीं बोलता, उसके अंदर पाक रूह काम करता है। सो जब मैं कलाम के लिए वो भाई फिर उठाए तो इसी आप सब देखा करें, जिसको भी खुदा का रूह भरता है वो फौरन दुआ शुरू किया करे। जैसे बहनों को मुझे बहुत खुशी होती है, हम सब बहनें सब एक जैसी हैं, खुदा का शुक्र है कि कोई भी कहता तो बहनें सबसे पहले आगे होती हैं हर काम में, दुआ करने में, गीत गाने में, हर मतलब तो खुश आप भी भाई भी ऐसा ही किया करें। तो खुदा का वो अल्फाज तो उसने देने हैं हमें, खुदा के रूह ने देने, जो अल्फाज उसकी तरफ से होते हैं वो असर रखते हैं, उसका असर ज्यादा होता है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि कलाम की इज्जत करो, उसकी इज्जत है। जब कलाम की इज्जत करते हैं तो खुदा की इज्जत है। तो सब खामोशी से बैठ के आवाज है जो हमने सुननी है, उसकी आवाज का हम पे असर होना है, उसके अल्फाजों का जो उसने हमारे लिए बोले। सो सब बच्चे भी खामोशी से बैठे, इब्रानियों 11 बाब निकाल लिए, ईमान की सब गौर से सुनिए खुदावन के कलाम में क्या लिखा है। जी अमीन की हुई चीजों का इस्तेमाल और अनदेखी चीजों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। अच्छी गवाही अच्छे लोग ही देते हैं और वो खुदा के नबी पैगंबर वो थे जो अच्छी गवाहियाँ देते थे। आजकल हम लिखवा लेते हैं अपने साथ, कई डिग्रियां लेते हैं, लेकिन अच्छी गवाही वही देगा जो खुदा के नज़दीक होगा, जो उसके हुक्मों के अंदर रहेगा, जो उसके हुक्म के साथ चलेगा। और ईमान हमने अनदेखी चीज़ों पे रखना है, ज़ाहिरी चीज़ों पे नहीं रखना जो हमें नज़र आ रही हैं, उन पे ईमान नहीं। अनदेखी खुदा को किसी ने नहीं देखा पर फिर भी हम ईमान रखते हैं कि वो है, उसने हमें बनाया, उसने चीज़ें बनाई, उसने खलक की चीज़ें, उसने हर चीज़ को अपने हुक्म से जारी किया। हो जा, कोई बताए, हो जा तो क्या हुआ? हो गया, हालेलुया, हो गया। सो ये अनदेखी चीज़ों का सबूत है और गवाहियाँ जो है वो अच्छे लोगों की खुदा दिलवाता है।
ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है सारी चीजों से बना हो। अमान ही से हाबिल ने कहन से हाँ जी। अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजारी और उसी के सब से उसके रासबाज होने की गवाही दी गई, क्योंकि खुदा ने उसकी नजरों की बाबत गवाही दी और अगरचा वो मर गया है तो भी उसी के वसीला से अब तक कलाम करता है। हालेलुया, हालेलुया, ऐसा ही है। अब देखें हाबिल और काइन की स्टोरी आपको पता है। आदम का जो बेटे थे दोनों, और वो जो हाबिल था वो बड़ा था, लेकिन कुर्बानी किसकी कबूल हुई? बड़े की। हाबिल की कुर्बानी को कबूल खुदा ने किया क्योंकि उसने नियत से दी, ईमान से दी कुर्बानी, और काइन की नामंजूर हो गई क्योंकि खुदा की नज़र उस पे थी। उसने अपनी तरफ से नज़र की लेकिन खुदा को उसकी कुर्बानी पसंद ना आई, और हाबिल की कुर्बानी को पसंद किया गया क्योंकि उसने दिल से ईमान से कुर्बानी चढ़ाई खुदा के हुजूर, और वो पसंदीदा रहा। और आपने देखा है कि कलाम में जिक्र उसी का लिखा गया है जो खुदा के नज़दीक रहा, जो खुदा को पसंद आया। खुदा ने उसका नाम अपनी किताब हयात में कलाम में लिख दिया, और आज आप सबको पता है कि किसका हदिया कबूल हुआ और किसका नहीं हुआ। काइन का कोई जिक्र नहीं क्योंकि खुदा को उसका हदिया पसंद नहीं आया। इसी तरह खुदा अपने उन लोगों के साथ कलाम करता है जो उसके पास जाते हैं, जो उसके नज़दीक रहते हैं। खुदा उनसे हम कलाम होता है। हाँ जी, नेक्स्ट। अमान ही से हनूक उठा लिया गया। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से बेहतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर अमान के उसको पसंद आना नाम। अब हनूक जो था वो आदम की औलाद से, काइन से पैदा हुआ था, हाबिल से उसकी औलाद था हनूक। वो खुदा को पसंद आया तो खुदा ने उसको जिंदा ही उठा लिया। खुदा कुछ भी कर सकता है, खुदा कुछ भी बदल सकता है। खुदा ऐसी बड़ी कुदरत का मालिक है कि वो नामुमकिनात का खुदा है। जहाँ पर आपका ईमान डोल जाता है, दहल जाते हैं, बहक जाते हैं, वहाँ वो शुरू कर देता अपना ईमान का लेवल दिखाना। ऐसा खुदा है हमारा। उसको हनूक पसंद आया खुदा को, और उसने ऊपर उसको उठा लिया, अपने पास बुला लिया। तो खुदा के नज़दीक पसंदीदा वही लोग हैं जो खुदा को अपना बेस्ट देते हैं, जो खुदा के लिए सब कुछ करते हैं ताकि उसको पसंद आए। अब ईमान के बगैर उसको पसंद आना नामुमकिन है। अगर आपके अंदर ईमान नहीं, आपके अंदर राई के दाने के जितना भी ईमान है, तो आप उसके नज़दीक हैं, आप उसके करीब हैं, आप उसको पसंद हैं, आप उसके फर्जंद हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। खुदा का शुक्र करते हैं। आमीन। हाँ जी, आगे पढ़े। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को अमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। हालेलुया। आगे भी हाँ जी, नहीं अभी मुझे इसको बताने दें। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है इसलिए कि खुदा के पास आने के लिए हमें क्या लाना है? ईमान लाता है। अब आप मज़बा पे घुटने टेके दुआ कर रहे हो, खुदा बोले नहीं है, और आप ईमान से आए हो ना, खुदा के घर में ईमान लेके जाते हैं तो फिर वो हमें शिफा देता है, वो आप पे हाथ रखता है, वो आप मौजज़ात होते हैं, उसके नाम से मौजज़ात दिए जाते हैं। और ये है आपका ईमान और मेरा ईमान कि खुदा है, वो मौजूद है, वो जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि वो अपने ताल्बों को बदला देता है, अपने ताल्बों को, जो उसके तालिब हैं, जो उसके दीदार के तालिब हैं, जो उसको चाहते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, वो उसके तालिब हैं, और वो अपने ताल्बों को बदला देता है। वो बदला लेता नहीं, वो उनको अच्छे अजर देता है, आपको सिला देता है, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने देता। खुदा का शुक्र करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़े। हमारी के सब से नूह ने उन चीजों की बाबत जो उस वक्त तक नजर ना आती थी, हदायत पाकर खुदा के खौफ से अपने
घराने के बचाव के लिए कश्ती बनाई। हाँ जी, जिससे उसने दुनिया को मुजरम ठहराया और उस रासबाजी का वारिस हुआ जो अमान से है, अमान ही के अमान ही के सबसे इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला। नूह का आपने देखा होगा, नूह के दौर की जब बदी आई थी, तूफान आया था तो बदी फैल गई थी। आपने देखा, पढ़ा, सुना कलाम। और बदी जब फैली थी तो लोग इतनी बदी बुराई में पड़ गए थे कि खुदा को फिर क्या करना पड़ा, तूफान भेजना पड़ा। मगर उसने जाने बचाई। क्यों जाने बचाई? क्योंकि वो उसे पसंद था, नूह उसको पसंद था। इसलिए खुदा ने नूह से क्या कहा कि तू अपने घराने को ले और कश्ती तैयार कर और उसमें चला जा, वरना वो भी उसमें हलाक हो सकता था, वो भी मर सकता था। लेकिन नहीं, वो खुदा के नजदीक था, वो ईमान में था। खुदा ने उसके ईमान को देखा, खुदा ने उसके ईमान को देखकर उसको ये सिला दिया कि वो बच गया, उसका घराना बच गया। आज हम जब जिंदा हैं तो हम भी ईमान से जिंदा हैं। ईमान से मांगे, उम्मीद से ना मांगे, ईमान से मांगे। जो कुछ मांगे उसी के नाम से मांगे। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र। दर्जा अवलियत, ईमान की अवलियत में रहा तो उन्होंने ये सब कुछ हासिल किया और खुदा की कुर्बत को भी हासिल किया। आमीन, आमीन। राजे हम हीलिंग के लिए दुआ करेंगे। आप सब अपना दाहिना हाथ उसके अल्फाजों को गौर से सुने। ये उसके अल्फाज है, मेरे नहीं ना किसी और के हैं। ये उसके कलाम की आवाज है जो आपने और मैंने सुनी और बरकत पाई। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, बच्चे भी अपनी आंखों को, बड़े सब आंखों को बंद करें। हालेलुया। अरे बासे मेरे ओ राशादारा, तेरा शुक्र तेरी तरफ। सब अपना दाहिना हाथ और आंखें बंद रखें और क्वायर मिलकर गाएंगे। बारिश तेरे लहू की होती रहे सदा, बारिश तेरे लहू की होती रहे सदा, बारिश तेरे लहू की, गाइए, होती रहे सदा, धरती पे आसियों को और आशे मेरे तेरे बेटे बेटियां खुदा हम तेरी हुजूर में आ चुके हैं खुदा। और आशा बरा लशे मेरे सब आशा बरा। ओ हालेलुया। जाएंगे हम जहां भी तू साथ साथ होगा, जाएंगे हम जहां भी तू साथ साथ होगा, बैठेंगे हम जहां भी तू दरमियान होगा, भूलेंगे ना कभी भी तेरी भली निगाह। धरती पे आसियों मिलती बारिश तेरे लहू की, कुछ इस तरह अज़ल से मेहरबान हो गया, कुछ इस तरह अज़ल से मेहरबान हो गया, आया था मेरे वास्ते कुर्बान हो गया, भूलेगा कौन जग में तेरी भली निगाह, तेरी भली निगाह। और सैयरा धरती पे आसियों मिलती रहे शिफा, बारिश
और ये गाती रहे बारिश तेरे लहू की, ये गाते रहे, मैं दुआ करूंगी। हालेलुया। बारिश तेरे लहू की गाते रहे धरती पे। खुदा बाप तेरे बेटे बेटियां खुदा खुदा मेरे ईमान से खुदा खुदा इन सब के लिए तेरी बात मांगती हूँ। इनके आंसुओं अपने आंसू खुदा खुदा ये तेरी हजूरी में तेरी शक्ति हो जाए। मैंने बच्चों की इच्छा में तेरी अदना सी बेटी खुदा इन बुजुर्गों के लिए दुआ इनको खुदा तेरी कुदरत जारी हो जाए। वसीला से तेरी बेटियां ढेरों बरकत अपने लिए अपने घराने के लिए लेकर जाए खुदा खुदा। और तेरी बेटियां तेरे हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और इस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में लगा बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा। अब हमारे खुदा का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आबरू की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, कुल ईमानदार कलीसिया के साथ सदा हमेशा होती रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। वो बैठे आप अगर आप रेडी हो या आप हो तो फिर देखो मैं खुदा ने आपको इस्तेमाल कर रहा है कहने से नहीं, खुदा आपको खुद ही मारेगा तो आप जैसे कि मेरी बहन या माँ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आती है तो मैंने हाँ चले चले ठीक है। हाँ रेडी रखा हाँ जी और ठीक जी खुश रखे सारिया भैन खुश रखा। ये कौन है? क्या लगती है आपकी? अच्छा